Mishra, as well as we can see here that a lot of IVENT students, they are all here to join us, and they are here basically to learn, and they are here basically to know what is all about this IDYM. Gentlemen, let me tell you one thing, that this United Dream of Young Minds, as the name suggests, is the ignition, that is spark. Dream, a dream which everyone desires of. Then young, as you all are young and vibrant, full of energy, josh, and everything. And the minds, and there is no one who can compare your minds. You are the best. Why you are the best? Because right now you are associated with few of the people, few of the most intellectual people of this country, in the form of Engineer Ratnesh Mishra, in the form of the founder of this United Dream of Young Minds, those people who have already proven their metals in their respective fields, and that has been recognized all over worldwide. Basically, the platform which is created in the form of United Dream of Young Minds is employing. Just give me a minute. I think there is some lot of disturbance is going on from this side. Just 1 minute. I will switch off. I will change my position so that. Gentlemen, we are talking about that why you all guys are so awesome, because we are here and talking about this United Dream of Young Minds, and this particular organizations and particular institutions, they have taken an inherent responsibility to nurture the young minds of our 1 point of the population of 1.3 billions in our 1.3 crores of our country. Out of this, we can see today that India is going on a very revolutionary phase, which is already inside by our Honorable Prime Minister in the form of Atmanirbhar Bharat. And why so? This is the only country which is still lagging behind in many fields, even after the more than 70 years of independence. For example, our country itself today is still not able to completely manufacture an engine of a particular aircraft or fighter craft. Still, we are importing those technologies. Still, we are importing our commercial aircraft engines. We are importing many other things. We are importing many technologies, though we have all the capabilities. But where we are lacking, the purpose, the sole purpose of this particular platform and to interact with you guys is this only, that our country should become self-dependent in many aspects. In many aspects, when I say that since the beginning, when our students have those kind of enthusiasm, and when our students, they have those kind of vision, that we will look for this. Like for example, the IIT has been instituted in our country more than 75 years back with the only aim to make India independence in the terms of technology. Though IIT, they have done a great jobs, but still there are many platforms where they are lacking. Like when it comes to the constructions of many cutting edge technologies. Although they are succeeding, there are the reasons why they are not making it to those principles, because some of the infrastructure constraints and other various constraints. But here, when we are talking about this satellite technology, mind it, the India is already way ahead in satellite technology. We are always hearing from you all that ISRO today launched this kind of satellite, that kind of flight. ISRO made a world record by launching 150 and so satellites in once in a go. ISRO has built the smallest satellite. ISRO is looking for manufacturing their own indigenous navigation system. What we are using today in the phone, that is the GPS global positioning system, which is of USA. Like China, they have made it already, but we don't have. Baidu, like China, they have made it, but we don't have. Why we don't have? But the entrepreneurs like this platform, the right now the platform on which you are there online and you are interacting, the people who are associated with this platform, they have proven their metal. They have launched, they have made the satellite with their own calibers, with the very less kind of resources,
with a very, very less kind of resources, support, and with completely, I must say, with their caliber of mental ability, these guys, they have proven their metals. So these guys will tell you in and out story about how the satellite works, Right. how it is interesting, how you guys, why you should join the satellite technology and knowing about it, why you should think about it, why you should look for this, and why you should make this satellite constructions or satellite launching as a career. And not only that, by listening to these entrepreneurs, they will tell you the cutting edge technology and how deeply it gets involved into that. You will come to know that sometime as a kids and the respective classes in which you are, you guys would have been definitely thinking how these things happen sometime in dream, that how these things moves 36,000 kilometers away from our earth, and they are noticing each and every activities. They are giving us signals in the form of DTH. They are giving us signals in the form of other optical instruments and many sensitive data, weather informations, and many other things in real time. They are all providing real time informations. So these all things are very complex. But only thing you will learn and you will try to learn when you will get desire out of it. When you will try to get into it, then you will come to know, oh, this was so interesting, and I was not aware. Sometime, like I'm a civil engineer, and when I was looking at one time, I used to think, there is a overbridge. How come some people will construct the railway tunnel below the sea? How it is possible? It can't be possible, because this sea, there are a lot of water. Earlier I used to think like this, but when I went into that, I came to know this is possible. And it is more than making it possible, it was very interesting to know how it is getting constructed. There are people who are working day and night, but it's all only possible when you will have those kind of ideas, those kind of thinkings, how these columns, how the sometime when you looks at the simple road over bridge, you might be thinking that this road over is just constructed, but you don't know the concept and the mechanism behind this, how it is getting constructed, and why it is getting constructed like this only, or in this fashion only, why not in some other fashion. So when you will come to know, it will be very interesting. That's why I must tell you that in this particular satellite technology classes and this platform, which is trying to imbibe you some or maximum input about the satellite technology and how these guys have performed so exceptionally well, which is recognized by our Prime Minister, President, even by NASA and many other countries. They will tell you how these things work, how they have made it, where they have found the hurdles, where they have been challenged, where they have been challenged by the situations, where they have been challenged by the occasions, many other factors which tried to hinder their performance, which has tried to deviate from their path. But these people stood strong and they made it possible. And once you will get a success, you will always feel that you have achieved something in life. It is your own identity, it is your own vision. That's why my my suggestion to you all guys, that you all are the future warriors of this country. Warriors in the terms of, you can be technical warriors, you can be other form of warriors for this country. So what I am looking at is, since beginning, if any one of you have those kind of vibes in your mind that you can do it, or you can go inside this, you guys can make worth of this particular presentations, our particular effort of IDYM to make our country great again. You might, there is a lot of things which I can tell you about many. You can see there Sanskrit. There are a lot of many things. I will tell you once. I was taught by my professor in IIT, and he was telling me a very nice example that in India, sometime when we talk about, you might be knowing beam columns in the houses. There are beams. Why its length is only limited to 25 meters? Why not more than 25 meters? In world today also, the beam can only possible till 25 meters in length. But in India, you can find there are so many temples. Those beams are having much more length than those prescribed limits. But how is it possible? Was there any engineer marvel before us, like the law of thumb, which is there in near Delhi? It is from since past 1700 years, but it has not rusted till now. There is a hell lot of research going on. Which kind of metal is this? That 1700 old this
particular iron pillar and still existing. So these things were earlier there in India, and India was the guru of these all things. We might have heard that Atharvaved, Yajurved, Rigved, Samved, these things they were having a lot of knowledge. And Hensang, you might have heard about the Hensang, when Hensang, from a great Chinese scholar, when they came to India and when he was returning back from India, he was having a complete 2 boats of books, and those 2 boats of books, when he was returning to India, it is all written in Sanskrit, and they have taken all those 2 books. And you guys are aware that those Chinese, they have opened the university in China to learn Sanskrit. And many Chinese scholars, they are there in Pune to learning Sanskrit. Why they are trying to learn Sanskrit? Because still they are trying to learn what is there in those books, which is taken by the Hensang from India. Like same in the when you will come to know about the Nalanda Khandar, which is there in the Bihar, you come to know there is a lot of research papers, a lot of library books, they have been burned down because people were feared led to India to rule over the world again. So they have burned it down. So we need to think it upon. There was a discussion when we read some holy books of Hindu or even some other religion, Guru Nanak Sahib and all. There it used to be tell like that there was Pushpak Viman, there was something like that, but it was actually there. And what people are doing today, they are again going to that particular aspects. So it is our responsibility to make the India again one of the world leader. And how it will be possible when our young kids, since the beginning only, they will have a vision, they will have some dedication for the country to work for, they will have some technical mindset. When they will work, work beyond the commercialization of education, when you will work beyond this, then you will realize, yes, knowledge is having its own power, knowledge having its own wisdom, and there will be a lot of satisfaction more than what you will get commercially out of education when you are going to achieve those. And in front of you, I think in the next lecture, the speaker who is going to come after me, they will tell you how the satisfaction level they have achieved in their life in so beginning of their careers. So I think I will finish my talk by telling you that you all guys are awesome. You guys have potential to do well. You guys have potential to put your country at the highest peak of this world, and you guys can do anything. So it is up to you how you are going to make it all possible. So please listen to the next speaker who is going to come over here. They will tell you the very interesting story and interesting their life journey all about how they are going to make all the things. And we can keep on sharing these kind of thoughts through this platform of Uniting Dream of Young Minds. And I will request you all guys that you must keep on interacting with this particular platform, because this is a platform which is totally nurturing all over the world, and they are interacting with our student to the other country students, and they are making some seminars, they are conducting some projects, they are conducting some workshop, and they are conducting so many things. So any one of you, after end of this particular seminar or this meeting, any one of you, if you are interested, and even out of you, even one of you can come up to these expectations of this particular platform, that will be a great help to the country. And for overall, definitely of your parents and for yourself, it will be there definitely. But of course, it will be beneficial for the entire country. And God bless India. God bless you all. Thank you so much for joining here. And thank you so much. Very good evening to you all. Thank you. And because of network, I was not connected with it. So please, Ravi ji, I'll take care of it. Yes, please. आपकी आवाज थोड़ा दिक्कत. Yes, no worry. So yes, Swapnil ji, I would like you. So thank you very much, Deepak sir, for this wonderful speech for all the students. एंड स्वप्निल जी, आप अपने पॉइंट्स बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसा भी, एंड योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी ऑफ नासा, एंड किस तरह का वहाँ पर ट्रेनिंग एंड किस तरह की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, एंड बचपन में क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपने उस चीज़ को लेकर मोटिवेट हुए एंड उसके लिए काम किया. तो उन सभी बच्चों को जो हम नासा एज ए सपने में और बाकी चीज़ें देखते हैं, तो उनको हम किस तरह से अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. सो यस, सो स्वप्निल जी, ओवर टू यू एंड थैंक यू. तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत. सो यस, थैंक यू.
if I can be enable the screen sharing option, I would like to show a few slides. सो एक्चुअली वो ट्राई किया मैंने बट अभी थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो अच्छा, इसलिए वी विल गो अहेड विद सो ऑल द स्टूडेंट्स विल हम जनरल एक डिस्कशन इंट्रोडक्शन की तरह करेंगे एंड सेपरेटली वी विल शेयर द पिक्चर्स विद ऑल द स्टूडेंट्स Okay. sorry for Sure. that Thank but you. yeah Thank you. we'll do that. No, Thank it's you. totally fine. Totally fine. So good evening, everyone. To all my dear students and the host school as well. It's it's an honor for me and all my team and my colleagues over here. जो हम सब यहाँ पे एक इवनिंग के टाइम पे हम सब यहाँ पे गैदर हुए हैं डिस्कशन करने के लिए कि ना व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और हमें क्यों स्पेस टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में हमें क्यों बढ़ना है एंड व्हाई दिस इज द राइट टाइम फॉर द citizens or even the students community of India to explore the space community as of now. So नासा ऐसा एक ब्रांड है जो हर सबको हम सब सभी को नासा के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होता ही रहता है लाइक वी हैव सीन लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज वी हैव हर्ड अबाउट नासा सो नासा और इसरो में जो बेसिक डिफरेंस है सो आई वुड लाइक टू पॉइंट दैट आउट बिगिनिंग और उसके बाद मुझे कैसे स्कोप मिला नासा में काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स करने के लिए तो उसके ऊपर हम आई विल शेयर फ्यू इंफॉर्मेशन सो टू स्टार्ट विद नासा के अब जो लाइक करंट फंडिंग है नासा के जो अभी करंट लाइक एक्टिविटीज है दैट स्टार्टेड वे बिफोर द इंडियन स्पेस कम्युनिटी वाज क्रिएटेड क्योंकि इसरो का जो एस्टेब्लिशमेंट था दैट वाज इन द लेट 1980s लेकिन नासा का जो एस्टेब्लिशमेंट था दैट वाज इन द अर्ली 19s सो द एडवांटेज उन लोग के पास ये था कि दे हैव ए फैक्टर ऑफ टाइम क्योंकि उन लोग ने जो अपना एस्टेब्लिशमेंट है दे हैव स्टार्टेड अर्लियर सो इसलिए वो लोग हम लोग से अभी फॉर अ टाइम बिंग दे आर अहेड इन सम एप्लीकेशन लेकिन इट्स अ ग्रेट like moment for me to share the information that maximum of the NASA scientists जो high level position में अभी काम कर रहे हैं they are either from India directly or they are the Indian origin the NRI community so हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि इवन द बेस्ट ऑफ द स्पेस एजेंसीज लाइक नासा वहाँ पे इंडियन माइंड्स के जो ग्रुप्स है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में है सो यू कैन अंडरस्टैंड जे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं ये अभी काम के लायक है कि नहीं बहुत सारे डिस्कशन अभी ऐसे भी आ रहे हैं कि इज द एजुकेशन सिस्टम इज टू रोबस्ट इतना प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यही सिस्टम क्रॉस करके मैनी ग्रेट साइंटिस्ट इंजीनियर्स मैनेजर्स हैव रीच्ड नासा इवन हमने भी अपनी पढ़ाई गुवाहाटी में किया है और फिर कॉलेज हम गुवाहाटी में किए हैं उसके बाद आई स्टडीड इन इटली लेकिन जो बेसिक वैल्यूज और स्किल्स और नॉलेज मैंने सीखा है वो इंडियन एजुकेशन के माध्यम से ही मैंने सीखा है आई स्टडीड फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम डायरेक्टली और वही जो वैल्यूज और नॉलेज मैंने गेन किया है दैट हैज हेल्प्ड मी टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन नासा मेरा जो एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर स्पेस और स्पेस में मेरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर या फिर एरिया था जो अभी भी आई एम एक्सप्लोरिंग दैट इज द एलियन पार्ट हम वेरेवर आई गेट अ चांस टू स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स हम सबको ये शेयर करते हैं कि हमें एलियन हंटिंग बहुत पसंद है आई रियली लव एक्सप्लोरिंग अबाउट एलियंस और हम लोग ने बहुत सारे मूवीज देखे हैं अभी तक ऋतिक रोशन का एक मूवी था कोई मिल गया आई थिंक या तो वहां पे जादू बोल के एक एलियन स्पीसीज था एंड दैट वाज द रीमेक ऑफ ए अमेरिकन मूवी ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भी आते हैं और हमने भी ये क्वेश्चन नासा के जो डायरेक्टर थे यूरोपियन डायरेक्टर उनको भी हमने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक आपको क्या लगता है कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते तो उन्होंने उनका जवाब वेरी ट्रिकी वे से मुझे दिया था कि ही डिड नॉट गिव मी डायरेक्ट आंसर यस और नो उन्होंने मुझे हाँ या ना नहीं बोला उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हम अमेजन फॉरेस्ट में अगर हम देखें मेनी ऑफ द एरियाज आर नॉट एक्सप्लोर्ड और अमेजन फॉरेस्ट इज जस्ट आउट ऑफ आवर हैंड लाइक हम मतलब वो प्लेनेट अर्थ के ऊपर ही है अगर अमेजन फॉरेस्ट या फिर बहुत सारे डीप ओशन एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स हम लोग ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है हाउ कैन वी बी श्योर कि एलियंस का जो
एक्सप्लोरेशन है वो हम लोग ने अभी खत्म करके लाइक वी एक्सप्लोर्ड दैट पार्ट। और अगर हम यूनिवर्स को स्टडी करें अभी के सिस्टम में, हम सोलर सिस्टम के बाहर ही नहीं जा पाए अभी तक। वी हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेवल बियॉन्ड मार्स। सोलर सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, वी हैव प्लूटो एंड यूरेनस, दीज आर लाइक फार अवे। सो वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच इवन मार्स। हम लोग अभी तक मून पे ही वी आर स्टक टू दैट। दैट इज वन डिस्कशन की अगर हम सोलर सिस्टम को क्रॉस कर पाते हैं, possibilities कि we will definitely find other life forms जो other atmospheric pressure में they are able to survive. That is one thing. Second, दूसरा point ये है कि बहुत साल पहले अगर आप लोग अगर जियोग्राफी या फिर आप हिस्ट्री अगर देखें द जियोग्राफिकल पार्ट ऑफ इट, तो एक टाइम ऐसा था कि द कॉन्टिनेंट्स वेर डिवाइडेड एंड उनके बीच में देयर वाज नो कम्युनिकेशन, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज फर्स्ट। व्हील जो है उसका इन्वेंशन पहले हुआ था, एंड व्हाइल दैट वाज गोइंग ऑन उसके थोड़ा टाइम पहले बोट्स या फिर बोट्स या शिप्स का डिजाइन हुआ था। लेकिन ऐसा टाइम एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पे शिप्स या वाटर मीडियम पे ट्रेवल करने के लिए देयर वाज नो टेक्नोलॉजी या फिर नो इनोवेशंस डन। और उस टाइम पे अगर हम केव पेंटिंग्स अगर हम स्टडी करते, हड़प्पा मोहनजोदारो का अगर हम स्टडी करते, या फिर हम इजिप्ट के जो केव पेंटिंग्स है वो हम स्टडी करते, एक कॉमन फैक्टर ये दिखाई पड़ता है सबको कि there are designs of human figures, there are designs of like different hunting tools। उस टाइम पे स्टोन शार्प स्टोन्स हो सकता है या फिर स्टिक्स हो सकता है, एंड वी हैव सीन डिफरेंट एनिमल्स अलोंग विद दोस हंटर्स। लेकिन वहाँ उसके साइड में वी हैव आल्सो सीन डिफरेंट काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर जहाँ पे जो फुल बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत लंबा है, इट्स ए वेरी आई वुड से लाइक ए टॉल वन, एंड उसके साथ जो एक चेहरा है वो दैट इज लाइक एन एग शेप वन, एक अंडे की तरह एक चेहरा आपको दिखाई पड़ सकता है। और इसका बहुत सारा रिसर्च दे हैव कंडक्टेड एंड दे हैव डन लॉट ऑफ साइंटिफिक आई वुड से प्रोसेसिंग कि वो जो केव पेंटिंग से वो लाइक व्हेन वाज इट डन, वाज इट डन बिफोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग ओवर ओशन वाज में किया गया है। सो व्हेन दे हैव डन दिस कार्बन डेटिंग प्रोसेस, जहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि वो पेंटिंग कितना पुराना है, तो इट वाज फाउंड दैट जो केव पेंटिंग्स इजिप्ट में है, जो केव पेंटिंग्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए गए थे, तो वहाँ पे जो एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का डिजाइन था दैट वाज डन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। और उस टाइम पे देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन वन प्लेस टू अनदर, उसके बीच में ना ही लैंड कम्युनिकेशन पॉसिबल था, ना ही देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वाटर कम्युनिकेशन। सो इसका मतलब यही हो सकता है, देयर इज अ हाई 99.9% पॉसिबिलिटी कि जो हम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर यूएफओ साइटिंग्स के बारे में बात करते हैं या फिर एलियंस जो हम कॉमन टर्म दिए हैं इनको, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये एग्जिस्ट करते थे और अभी भी करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी दे आर अमॉन्ग अस। अभी हम लोग जो हैं यहाँ पे अराउंड 24 ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स, हम लोग के बीच में ही कोई एलियन हो सकता है, वी डू नॉट नो बिकॉज दे आर एडवांस इन आवर टेक्नोलॉजी, राइट। नासा इसरो से दे हैव स्टार्टेड अर्ली, सो उनका जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो आगे है, सो दे आर एडवांस इन देयर स्पेस एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट, और उनका फंडिंग और उनका जो होल ऑपरेशन है वो एडवांस है। और एलियंस भी ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अगर हम देखते हैं वो भी एडवांस है। सो मे बी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अभी रत्नेश जी भी एलियन हो सकते हैं, दैट ही इज इन ह्यूमन फॉर्म, इज हाई पॉसिबिलिटी फॉर दैट, राइट। तो ये इतना इंटरेस्टिंग फील है एलियंस का, इसको एक्सप्लोर करते करते ही हम नासा के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वहां पे हम जा पहुंचे। तो मेरी टीम का जो मेन काम था, मेन ऑब्जेक्टिव था ये, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम देखते हैं वी हैव लॉट ऑफ वेहिकुलर मींस, हम लोग बाइसाइकिल हो या फिर प्लेन्स हो या फिर लाइक वी हैव टू व्हीलर्स, गाड़ी, बाइसाइकिल, साइकिल, स्कूटी, स्कूटर, एंड लाइक ऑल दिस व्हीकल्स वी हैव। लेकिन अगर हम मून पे अगर देखते हैं वेयर द ग्रेविटी इज 1/6, वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, तो उस कम ग्रेविटी में हम कौन सा डिजाइन का व्हीकल चला पाएंगे, उसके ऊपर ही मैंने मेरे टीम ने रिसर्च किया। पहले से भी बहुत रिसर्च उसके उस फील्ड में किए जा चुके हैं। मेनली रेस्पॉन्सिबल टू
डिजाइन ए प्रोडक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ पेन पेपर में उसको डिजाइन करके रखो, ऐसा नहीं था, बट यू हैव टू एक्चुअली मेक समथिंग जो मून लाइक एटमोसफियर या फिर सरफेस लेवल में काम कर पाता है। तो उसको हम टर्म किए हैं मून बगी। मून बगी ऐसा एक नॉर्म कॉमन टर्म है जो स्पेस टेक्नोलॉजी फील्ड पे वी आर कॉमनली यूजिंग इट, कि मून सरफेस में अगर कोई ट्रेवल पॉइंट ए से टू पॉइंट बी अगर कोई ट्रेवल करता है, उस व्हीकल का बाय डिफॉल्ट नेम पड़ता है मून बगी। तो हम लोग, मेरे टीम ने, आई हैड सम पार्टिसिपेंट्स, मेरे कुछ कुछ मेंबर्स या फिर टीममेट्स जर्मनी के थे, कुछ यूक्रेन के थे, कुछ कजाकिस्तान के थे, कुछ इंडिया के थे। सो ऐसे 3-4 कंट्री मिलके वी हैव डिजाइंड ए व्हीकल जो मून सरफेस में पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा सकता है। और उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी इंडिया या फिर कोई भी लाइक सरफेस ऑफ द प्लैनेट, मतलब अभी मून, आई मीन क्या, आई मीन से कि अभी प्लैनेट अर्थ के ऊपर ऐसा कोई लाइक देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए मून लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग की यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसको हम कम नहीं कर पाएंगे टू टेस्ट आवर व्हीकल। तो हम लोग मेरे टीम ने ये काम किया, इंस्टेड ऑफ लुकिंग द ग्रेविटी एस्पेक्ट, हम लोग ने जो मून का सरफेस है उसको स्टडी किया, और एक 2 किलोमीटर का हम लोग ने एक रेस ट्रैक बनाया जहाँ पे वी हैव पुट इन ग्रेवल्स, हम लोग ने उधर में पत्थर रखे, उधर में सॉइल रखा, उधर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स जो हमें मून सरफेस के ऊपर मिलेगा वो हम लोग ने वहां पे रखा। एंड वी हैव ड्रोव इट, लाइक हम लोग ने उस व्हीकल को पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम लोग ने उसको चलाया, और उसका जो फैक्टर्स या फिर शॉक एब्जॉर्वर हो सकता है या फिर टायर पंक्चर हो सकता है, ये सब फैक्टर्स हम लोग ने स्टडी किया है। और उसको स्टडी करते करते वी हैव फाउंड ए कंक्लूजन कि हम लोग का डिजाइन जो था दैट वाज इफेक्टिव। और क्योंकि मून का सरफेस में, कीपिंग असाइड द ग्रेविटी पार्ट जो कम है कंपेयर टू द प्लैनेट अर्थ, द अदर फैक्टर्स आर ऑलमोस्ट द सेम। और अभी जो रिसेंट डिस्कशन या डिस्कवरी हो रहा है प्लैनेट मून मून सैटेलाइट के ऊपर, तो दे हैव फाउंड कि वहाँ पे वाटर कंटेंट पॉसिबिलिटी इज आल्सो हाई, पानी का जो प्रेजेंस है वो भी हाई है अभी। और मार्स के ऊपर अगर हम स्टडी करें यूजिंग क्यूरियोसिटी एज ए रोवर, तो वहाँ पे भी लाइक द वाटर कंटेंट हैज बीन 50-60% कंफर्म कि वहाँ पे वाटर कंटेंट इज अवेलेबल। और इवन द प्लैनेट्स और सैटेलाइट जो सैटर्न या जुपिटर के अराउंड जो सैटेलाइट्स है वहाँ पे, एंड दोज आर लाइक सम ऑफ देम, वहाँ पे टेम्परेचर -900 डिग्री सेल्सियस तक दे हैव फाउंड इट। तो वहाँ पे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि उस सरफेस के नीचे देयर आर लॉट ऑफ स्पीसीज दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडियलाइज और आइडेंटिफाई, क्योंकि the surface of many of the satellites around Jupiter and Saturn, वहाँ पे the surface structure is very thick। वहाँ पे आइस का जो लेयर है वो अराउंड 2-3 किलोमीटर तक हो सकता है, there's a possibility। और we have not been able to penetrate even our Amazon forest। हम लोग ने अभी जो अर्थ के ऊपर है, हम लोग मेरिना ट्रेंच जो डीपेस्ट अभी point surface of the planet we have seen, even Amazon forest, the huge biodiversical part, so वहाँ पे हम लोग ने अभी तक 100% एक्सप्लोरेशन हम लोग नहीं कर पा रहे। तो इफ दैट इज द केस, और मून के जो सरफेस है ओनली फ्यू एरियाज वी हैव बीन एक्सप्लोर्ड, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मून का अगर हम पूरा प्लेनेट अगर इफ यू हैव एक्सप्लोर द होल सैटेलाइट, और या फिर इवन अदर प्लैनेट्स अगर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो एलियन लाइफ फॉर्म्स के जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। तो दो बात है, यू हैव टू टेक कीप दिस इन माइंड कि रत्ने जी और मेरे या फिर जो भी अभी हम मेरे कॉलीग्स है यहाँ पे, सब लोग ने जो पढ़ाई किया है दैट इज दैट दे हैव एक्सप्लोर्ड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ओनली। we did not get extra tuition, हम लोग को एक्स्ट्रा ट्यूशन स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर एलियन रिसर्च के लिए ऊपर नहीं मिला। द ओनली थिंग वी गॉट वाज गूगल ही हम लोग के पास था, और गूगल को बाइबल समझ के ही हम लोग ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। जो भी मन में आता था हम लोग ने गूगल में टाइप किया, रिसर्च हो या फिर न्यू एक्सप्लोरेशन हो, न्यू आइडियाज हो, हम लोग ने एक्सप्लोर किया है थ्रू गूगल। और जो बेसिक एजुकेशन हम लोग को मिला है दैट इज थ्रू द सेम एजुकेशन सिस्टम। और आप लोग को के अगर मन में अगर ये आइडिया या थॉट है कि मुझे भी स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर लाइक करना है, द एरिया इज सो वास्ट। अगर हम अभी इकोनॉमी में अगर हम थोड़ा मैं थोड़ा इकोनॉमी का भी डालना चाहता हूँ थोड़ा पॉइंट्स। अगर इफ यू वांट टू सी द करंट बिजनेस,
कि अगर बिजनेस में एरियाज में आपको पॉसिबिलिटीज रहेंगे, दैट इज वेरी फ्यू बिजनेस डोमेन्स। अगर हम देखते हैं तो दैट में बी अराउंड 40 to 50 सेक्टर्स ओनली। कोई ऐसे ज्यादा सेक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको बिजनेस करने के लिए। लेकिन अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं तो आप कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, एस्ट्रोनॉमी का या फिर एस्ट्रोफिजिक्स का आप पकड़ लीजिए, या फिर आप स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, कुछ भी डिपार्टमेंट आप स्पेस रिलेटेड पकड़ लीजिए, देयर इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट्स और एरियाज दैट यू कैन पिक अप। उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, उसमें आप इंजीनियर बन के आप इसरो में जा सकते हैं, इंजीनियर बन के आप नासा में जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा में सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, नासा में डॉक्टर्स भी है, एमबीए स्टूडेंट्स भी है, अनकी इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स भी वहां पे है, क्योंकि उन लोगों को कंटेंट लिखना पड़ता है। और इसरो में भी देयर इज नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियर, डॉक्टर्स भी है, स्पेस टेक्नोलॉजीज भी है, स्पोर्ट्स एथलीट्स भी रहते हैं जो एस्ट्रोनॉट या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस में जब जाते हैं आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी। और अगर स्पेस में, अगर मून में जाना है, सो इट्स नॉट ओनली द मैन, फिजिकल स्ट्रेंथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने एक अटेम्प्ट किया था टू अंडरगो एज द एस्ट्रोनॉट, पूरा एक सैंपल या डेमो करने के लिए हमने मुझे एक वीक के लिए सिर्फ दोहराया गया। सो आई वाज आस्क्ड टू रन फॉर 1 वीक, लाइक एवरी मॉर्निंग 2 घंटे के लिए दौड़ो, इवनिंग 2 घंटे के लिए, एंड मिडनाइट आप 2 घंटे के लिए दौड़ो। सो दैट वाज माय रूटीन फॉर 1 वीक, एंड इट्स नॉट इजी। क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हैं जहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, आपका फिजिकल एंड्योरेंस अगर आपका कम होता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। आपका बोन मेरो अगर उसमें स्ट्रेंथ कम होता है या फिर बोन मेरो कम होता है, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर आपको ब्लड प्रेशर का ऑप्शन है या फिर यू हैव अदर like issues like this, तो आपको like you will not be able to survive over there. So while exploring or while like going through this kind of like thoughts या फिर like studies, आपको physical strength और mental strength एक साथ आपको लेके जाना पड़ेगा। एंड अगर आप अभी से अगर आप प्रिपेयर करते हो, आप टाइम टेबल अगर फॉलो करते हो, अगर आप नॉलेज एक्सप्लोरेशन या फिर स्टडीज में पढ़ाई बहुत स्टडी, because there is no better form of teacher than self study and nature. It's a very popular phrase कि नेचर जो हमें सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाएगा। लेकिन नेचर को स्टडी करने के लिए भी आपको टाइम उतना ही इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, आपको टाइम उतना ही डिवोट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सेल्फ स्टडी। आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। नाउ IDYM फाउंडेशन इज प्लानिंग एंड it has started its vision and mission of making sure that आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, like from the experts। हम लोग experts नहीं claim करेंगे हम लोग को, but we have the experience and knowledge to some extent। हम आपको at least information तो share कर ही पाएंगे, that is the least we can do। and if you are good enough, अगर आप लोग अगर prospect है तो we can definitely give you the hand holding support। आपको full process में we can help you out। लेकिन उसके पहले जो जर्नी होगा, that is your डिटर्मिनेशन, आप कितना डिटर्मिन रह पाएंगे थ्रू आउट द कोर्स। क्योंकि अगर आपका डिटर्मिनेशन कम होगा तो वी कैन नॉट बी एबल टू पुश यू। क्योंकि अभी तक हम लोग ने जितना वर्कशॉप किए हैं अभी तक, वी हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड देयर कैलिबर। हम लोग ने बहुत सारा एक्सप्लोरेशन किया है एंड वी हैव फाउंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स। और उसमें अगर आपको सिलेक्ट होना है, सो ये वर्कशॉप के बाद भी आपको कनेक्टेड रहना है हम लोग के प्लेटफॉर्म से, और हम लोग के जो एक्टिविटीज है वो आपको फॉलो करना है। हम लोग के वेबसाइट जो है वहां पे हम लोग अभी वी आर पब्लिशिंग लॉट ऑफ important articles and information brochures and all, वो भी आप लोग को फॉलो करना है। और इन कमिंग ईयर्स, कमिंग मंथ्स, अगर हम लोग को अगर फिजिकल इंटरेक्शन का मौका मिलता है, हम लोग आपके स्कूल में आएंगे, विल हैव ए वेरी गुड चैट, विल डिस्कस अबाउट एलियंस। वहाँ पे हम आपको कुछ और एविडेंस लेके आएंगे एलियंस के ऊपर, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट। तो आज का वर्कशॉप अभी लाइक इट्स Yes. थोड़ा इवनिंग, लेट इवनिंग आई वुड से। सो it was nice seeing all of you कि आप लोग join किए हैं, interest दिखाए, and I wish you all the best। और in the coming days also we'll be exploring and discussing more on space technology। Thank you so much। Thank you। Yeah, superb स्वप्निल जी, and thank you so much। Sometime आपकी बातें इतना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एलियंस शायद हम में से ही कोई है, आप कह रहे हैं। सो एंड ऑल दोज थिंग्स, कितनी क्यूरियस चीजें अबाउट दोज डिफरेंट प्लैनेट्स एंड वहाँ की चीजें। सो सभी बच्चों, जस्ट आई विल जस्ट टेक 5 minutes फ्रॉम माय साइड। आप सभी बच्चे, आप अपने
आंसर यस या नो के आंसर आप मैसेज पे भेजिएगा। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? क्या आप सभी ने अपने बचपन में या अभी आसमान छूने के सपने देखे हैं? Yes or no? Like, have you ever wondered कि I will touch the sky? Or I can see the video. You can raise your hand. Okay. आसमान छूने का सपना देखा है किसी ने? You can message. You can just raise your hand if it is. I can see all their videos. You can unmute and say, yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, एंड दूसरा चीज, क्या कभी आप सभी ने दुनिया घूमने के सपने देखे हैं? Yes, sir. कि मतलब आई विल रोम Yes, अराउंड द sir. होल वर्ल्ड। यस 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 Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ऑफ कोर्स। ओके, नाइस, सुपर्ब। सो ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके लिए सपने की तरह है जो आपने देखा है, राइट? तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सपने हैं, ठीक है, ये 2 सपने एक ऐसी चीज पूरा कर रहा है जिसका नाम है सैटेलाइट, ठीक है, और वो सिर्फ आसमान ही नहीं, आसमान से भी ऊपर स्पेस को छू रहा है। एंड दूसरी चीज, वो अर्थ के चक्कर लगाता है हर 90 मिनट में। तो हर 90 मिनट में विथ ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं अभी हरियाणा के लिए निकलूं नासिक से, शायद मैं आपके घर पे होऊंगा 5 मिनट में, अगर मैं सैटेलाइट होता तो ये जो 2 चीज है, ये जो सपने हैं आपके बचपन के, वो एक्चुअली सैटेलाइट जी रहा है वो सपने। तो इसीलिए हम हर सैटेलाइट की चीजें या स्पेस की जुड़ी हुई चीजों को एक सपनों की जर्नी बोलते हैं। तो दैट्स वाई आप सभी ने वो सपने अपने अंदर देखे हैं, बट उन सपनों तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं, यही पूरी जर्नी है सैटेलाइट की, यही पूरी जर्नी है स्पेस की। अच्छा, आप सभी आसमान में देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? जब ऊपर देखते हो तो क्या दिखता है? कुछ भी, जो भी आपको दिखता है आप बता सकते हो, अनम्यूट करके बताओ, मैसेज पे बताओ। तो एक चीज तो एलियन मैंने किया नोटिस। और क्या बहुत सारी चीजें स्वप्निल जी ने बताई कि क्या क्या दिखते हैं। Stars, moons, स्टार्स दिखते हैं, राइट? मून और sun, सन, satellites, planets. सैटेलाइट, प्लैनेट्स। और बाकी लोग को और क्या दिखता है? Clouds. एरोप्लेन, Helicopters. हेलीकॉप्टर्स। नाइस, सुपर। सो बहुत सारी चीजों में आपको मैं हर एक चीज का अगर बताऊं, अच्छा, मुझे तो कई बार डार्कनेस, जो अंधेरा है, वो भी दिखता है, बट इस पूरी चीज में स्पेस मुझे कैसे दिखता है मैं आपको बताऊं तो मुझे स्पेस एक ड्राइंग बुक की तरह दिखता है। एक ऐसी ड्राइंग बुक जिसमें आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, आप इसमें कुछ भी नया कर सकते हो। सो जैसा कि स्वप्निल जी ने बोला कि सैटेलाइट और स्पेस की चीजों में जब आप करते हो तो आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो ये एक ऐसी ड्राइंग बुक है जिसमें आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आप सिर्फ स्टार पे फोकस करोगे तो आप ध्रुव तारे, सप्तऋषि तारे सब खोज सकते हो, राइट? और Yes. अगर आप सन पे फोकस करोगे तो क्या पता आप दूसरा सौर मंडल खोज सकते हो, सोलर सिस्टम खोज सकते हो नए, राइट? एंड ऑल्सो अगर आप सिर्फ अंधेरों पे फोकस करोगे, डार्कनेस पे फोकस करोगे, तो हो सकता है कि शायद आप नए ब्लैक होल खोज सकते हो, राइट? Yes, तो sir. इस तरह Yes, से sir. हर जो चीज में आप चाहो तो कुछ भी नया खोज सकते हो। तो इसलिए वी कॉल स्पेस इज अ अनलिमिटेड प्लेस टू वर्क। सो यस, इस तरह से सैटेलाइट एंड स्पेस की चीजें हैं जो थोड़े शॉर्ट टाइम की वजह से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको काफी सारे इंट्रोडक्शन पता चले इन सब से रिलेटेड। मैंने पर्सनली एक सैटेलाइट पे काम किया था जो कि कंप्लीटली स्टूडेंट बिल्ड सैटेलाइट था, आईआईटी बॉम्बे से। एंड और सो ये एक अच्छी चीज है कि हम लोग आपस में, मतलब मैं अपने बच्चे को जब कभी भी बोल सकता हूँ कि हाँ 20 साल बाद भी देयर इज समथिंग इन स्पेस जिसमें मैंने काम किया, राइट? तो वो सारी चीजें जब आप जनरली आपने टीवी पर देखा होगा कि टीवी पे इसरो के मिशंस होते हैं, नासा के मिशंस होते हैं जो लॉन्च होते हैं,
राइट? पूरे जब मैं अपने बचपन में दूरदर्शन में वो देखा करता था वो PSLV की चीजें, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि जब उसी रॉकेट पे रखने के लिए एक सैटेलाइट मैं लेके जाऊंगा, राइट? तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जो देखना है सपना, वो जरूरी है। सो आप सभी लोग आई एम श्योर बहुत ही एक्साइटेड एंड क्यूरियस हो गए इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए धीरे धीरे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो आप सभी सबसे पहले तो अपने आप के लिए तालियां बजाएं कि आप इतने रात तक यू आर एक्साइटेड अबाउट स्पेस एंड सैटेलाइट वर्कशॉप। सो दैट इज सुपर्ब ऑसम। एंड इसी के साथ सो वी विल, सो रवि जी इफ एनीथिंग ऑन दिस, अदरवाइज अगर आप सभी बच्चों के पास टाइम है और तो आप सभी स्वप्निल जी से कुछ भी और क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी ऑफ योर क्वेश्चन, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप सभी को एक एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि मुझे किसी ने, एक छोटी बच्ची ने पूछा था कि क्या आप कभी स्पेस में गए हैं? सो मैंने कहा था नहीं। क्या आप कभी एस्ट्रोनॉट, मतलब क्या आप कभी जो स्पेस में जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं? तो मैंने कहा था कि रॉकेट से जाते हैं। तो उस बच्ची ने कहा था कि क्या स्पेस में जाने के लिए सिर्फ रॉकेट ही होता है, कोई सीढ़ी नहीं होती क्या? सो मैंने उसे, सो आई वॉज सरप्राइज टू थिंक, क्योंकि उसने कहा कि मैंने बच्चों के जो कार्टून आते हैं उसमें देखा था कि स्पेस तक जाने के लिए सीढ़ी होती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, सीढ़ी नहीं होती है। तो उसने बोला कि अगर नहीं भी होती है तो ना हो अभी, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तो मैं वो सीढ़ी बनाऊं। तो जो इस तरह के बच्चे वो सपने देख सकते हैं जो कि मैंने कभी नहीं सोचे, जो हमने कभी नहीं सोचे, और हम कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि शायद वो नहीं है इस वजह से सोचते नहीं, या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए नहीं सोचते। तो इसीलिए आप सभी बच्चे कुछ भी जो आपको पूछना है, आपको जो भी चीज स्वप्निल सर से डिस्कस करना है अबाउट नासा, तो वी कैन हैव 5-10 मिनट्स मोर अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। तो यस, आप सभी कुछ भी मैसेज है, अगर क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके बोलिए एक एक करके, या फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ओके, सो जस्ट 2-3 क्वेश्चंस विल टेक। मैसेज करना उनको, एक मैसेज करना इस दूसरे सेकंड स्पेस में गया सेकंड। एक्सक्यूज मी यस यस, गो अहेड। सर, वन रॉकेट में कितने पीपल्स जा सकते हैं? ओके, सो 1 रॉकेट में कितने लोग जा सकते हैं, राइट? यस सर। बेसिक नंबर, क्योंकि देखिए बात यह है कि जो रॉकेट का डिजाइन या फिर स्पेस कैप्सूल का डिजाइन होता है स्पेस क्राफ्ट का पर्टिकुलरली, तो वहां पे मिनिमम ऑफ 4 टू मैक्सिमम ऑफ 8, तो उस रेंज के अंदर ही एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है, फ्रॉम 4 to 8। अगर ज्यादा भेजना है देन इफ वी हैव टू सेंड मोर, देन आपका स्पेसक्राफ्ट उसका डिजाइन बड़ा करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड 4 to 8 के बीच में एस्ट्रोनॉट्स को भेजे जा सकते हैं बाहर में। राइट, सो एनी अदर क्वेश्चन, कोई भी और बच्चों? Sir, I can. यस यस, Sir, how to सर, स्पेस become में a मैक्सिमम कितने how दिन to तक रह become- सकते हैं? ओके, एक क्वेश्चन हो गया, कितने दिन रह सकते हैं, और दूसरा ईशान पूछो। how to become a astronaut, space engineer, ओके, satellite engineer. स्वप्निल जी 2 क्वेश्चन कि सैटेलाइट इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और स्पेस में कितने दिन रह सकते हैं? सो अभी तक जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है स्पेस में रहने का, दैट इज अराउंड 84 days। और जो द पर्सन हु हैज स्टेड इन स्पेस फॉर, मतलब वो स्पेस, क्योंकि अब अगर सबको मालूम है कि देयर इज ए स्टेशन, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी मौजूद है, दैट इज रिवॉल्विंग द प्लैनेट। तो वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज इज 84, एक जन रहे हैं वहाँ पे। बट देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। At the moment he has landed on the planet surface, उनका physical structure में there were lot of deformities। तो उनको जो experience था वो obviously he has stayed for 84 days, लेकिन according to him जो prescribed limit है, you should not stay more than 1 month। अभी के जो टेक्नोलॉजी है, अभी के जो स्पेस है आपको मिलते हैं,
वहां पे अगर एक महीने के रहोगे विद अ फुल फिजिकल एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड और या फिर ऐसा मैक्सिमम लिमिट तो नहीं होता है, but the prescribed limit is 1 month to 1.5 month. तो from 30 to 45 days के ऊपर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं रहने के लिए, that might be bit tricky, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। And the second question, how to be a space engineer? तो देखो बच्चों, स्पेस इंजीनियर का ऐसा कुछ डिवीजन या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं रहता है। एनी इंजीनियर कैन जॉइन ए स्पेस एजेंसी। अगर करेंटली अगर आप इसरो में देखते हो, एनी इंजीनियर हु इज वर्किंग इन इसरो, आप बाय डिफॉल्ट उनको ग्रुप कोलैबोरेटिवली आप उनको स्पेस इंजीनियर बोल सकते हो। बट देन अगेन उनका जो बेसिक थॉट इन माइंड रहता है, दैट इज टू एक्सप्लोर द अननोन। स्पेस एक्सप्लोरेशन ही सबके विजन में सेम रहता है, एंड देन दे आर सिलेक्टेड फॉर द स्पेस प्रोग्राम्स या फिर एज ए इंजीनियर। नासा में हमने जब काम किया है, हम देन आई कुड फाइंड एमबीए स्टूडेंट्स भी वहाँ पे थे, इंजीनियरिंग मेजर भी वहाँ पे थे, एंड उसके ऊपर देयर वर इंजीनियर्स फ्रॉम डिफरेंट, इवन सिविल इंजीनियर्स भी वहाँ पे थे, आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स भी थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सब तरह के इंजीनियर्स इसरो या फिर नासा में काम करते हैं। उसमें पर्टिकुलर डिवीजन नहीं रहता है। सर अर्थ से बट और सन की डिस्टेंस कितना? आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ कुछ एरियाज है, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स हो गया। तो एस्ट्रोफिजिक्स इज मोर ऑन द थियोरेटिकल स्टडी ऑफ द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स या फिर स्पेस। तो वो उस इंजीनियर्स को पर्टिकुलरली सम ऑफ देम वुड लाइक टू रेफर एज स्पेस इंजीनियर्स और स्पेस साइंटिस्ट, मोर सो स्पेस साइंटिस्ट। बहुत R&D करते हैं या फिर दे आर एक्सप्लोरिंग, बाय डिफॉल्ट उनका उसमें रहता है। लेकिन स्पेस इंजीनियरिंग का पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है। एनीवन हु हैव जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन और बेसिक थॉट उनके माइंड में स्पेस एक्सप्लोरेशन का रहता है, so in general term we can name them as space engineers. That's it. राइट, सुपर्ब। सो मतलब ये सारे बच्चे अगर अभी स्पेस, आप अभी भी स्पेस इंजीनियर बन सकते हो, आप स्पेस इंजीनियर हो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड सर यस, सर अर्थ स्पेस का डिस्टेंस। अर्थ से स्पेस का डिस्टेंस, यस सर। ओके। सो no, अभी देखिए ना डिस्टेंस, अभी देखिए स्पेस अगर हम बोलते हैं तो 11 किलोमीटर के ऊपर अगर आप जाते हो, देन द लाइक द ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन, उसमें सिर्फ आपको लाइट वेट गैसेस ही मिलेंगे। तो स्पेस कैन बी अराउंड 11 to 12 किलोमीटर के ऊपर स्पेस चालू होता है, इट स्टार्ट्स। बट बियॉन्ड दैट इफ यू सी, ऐसे स्पेस का डेफिनेशन कुछ पर्टिकुलर नहीं है, but in general term anything above 11 kilometers we can say that's space. So our So- aeroplanes cannot go above that, it always goes beyond that, below that. राइट, तो ये डिस्टेंस याद रखना बहुत इजी है क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सो इट इज अनलिमिटेड, लाइक स्पेस इज, जैसा कि स्वप्निल जी ने बोला, 11 किलोमीटर के ऊपर आप कितना भी ऊपर जा सकते हैं, स्पेस ही स्पेस है, ऐसा है। स्पेस में सबसे पहले कौन गया था? यस, सर क्या साइंटिस्ट कौन है? वन बाय वन 2-3 क्वेश्चन और। सो स्पेस में सबसे पहले कौन गया था, राइट? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन श्रुति? Who is first scientist of NASA? फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ नासा, ओके। Yes, sir. Okay. So in the Okay. chat box also I could see there is one question. हाँ, So, यस। stars, are they bigger than planets and sun? So definitely there are a lot of stars. There is like there are a lot of big they are like far bigger than us. And the sun is स्पेस में गया था जो बोलने नहीं हो, स्पेस में। hello. यस यस, सो आप सभी म्यूट रखिए, जो भी है क्वेश्चन पूछने के बाद। यस स्वप्निल जी। Okay. Okay. Just one second. Like the network is a bit low. हेलो, अच्छा ठीक है। सो हाँ था कि एक क्वेश्चन आई कैन सी द चैट बॉक्स कि स्टार्स आर दे बिगर देन प्लैनेट्स एंड सन। सो सन का जो सरफेस है दैट इज 16 टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। और अगर आप
कुछ भी प्लान स्टार्स अगर आप देखते हैं दैट इज बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, मोस्ट ऑफ देम आर बिगर देन आवर अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ का जो अगर इफ वी हैव टू टेक ए मेजरमेंट ऑफ 1 to 100 Sir, voice is not clear. among the hello, is it clear now? Yes, yes. So अगर आप स्केल में देखते हैं 1 to 100, अर्थ का जो सरफेस एरिया है among the all known planets and the stars, that will be among 5 to 6% only. साइज के हिसाब से आप अगर देखते हैं, because there are lot of stars that is like 100 times bigger than our planet itself. That is one answer. Second question था कि the first person in space, that was a Russian cosmonaut. His name was Yuri Gagarin. यूरी गैगरिन थे पहले आदमी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे. और थर्ड क्वेश्चन था द फर्स्ट साइंटिस्ट इन नासा. तो इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज देखिए फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लोर द स्पेस वाज यूरी गैगरिन. उनको भेजने के लिए जो टीम थे, टीम मेंबर्स थे अराउंड 140 के आसपास. द मेजर कोर टीम ऑफ नासा वाज इन्वॉल्व. उनके पीछे देयर वर अराउंड 1000-2000 पीपल. तो जो फर्स्ट स्पेस प्रोजेक्ट था वहां पे द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे, दैट वाज अराउंड 1300 ऑफ द इंजीनियर्स और सो कॉल्ड स्पेस इंजीनियर्स एक साथ मिलके नासा का फर्स्ट स्पेस शटल उन्होंने भेजा था बाहर में. Yes. So super. So I think you all will be super excited now for this. And so yes, go ahead, go and search on all possible ways in space, satellites and anything. Okay. बहुत सारे ऐसे questions भी रहते हैं कि मैं bio अगर कर रहा हूँ तो मैं space में क्या करूँगा. Anything is possible in any field, जो भी आपको करना है. So yes, so इसी के साथ now just एक small closing remark by Dinul and Leila ma'am, so that we'll end this. So Leila ma'am. Leila ma'am, can you hear me? Okay, so maybe we will network का शायद issue है. So I will so रवि जी यहाँ पर शेयर करिए अपना नंबर एंड मेल आईडी एंड सभी बच्चे जो आपको बाद में कभी भी कनेक्ट करना है, कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप हमें मैसेज करो, मेल करो, कुछ भी रिलेटेड टू दिस. एंड देन इन दिस वे थैंक यू सो मच फॉर द कॉलेज प्रिंसिपल एंड एवरीवन, कॉलेज टीम, school team for this, for organizing this at so late evening. And so yes, so we'll end this now. And so thank you so much. Thank you everyone. Thank you Swapnil ji. Thank you Deepak ji for this wonderful speech for all the students. And I'm sure they are now super excited to explore things and to stay, so you all can stay connected to IDYM for more such opportunities in this. You can, आप अभी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप अभी कुछ भी बना सकते हैं. आप सैटेलाइट बनाइए, मॉडल बनाइए, उसका रॉकेट बनाइए, उससे उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पढ़िए. तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं चीजें. So yes, thank you everyone. So Ravi ji will end this now. I think the same network issue. So yes, ठीक है स्वप्निल जी. Thank you everyone. So सभी बच्चे end करने से पहले just say जय हिंद and then we'll end this. You can unmute and then say जय हिंद and then we'll powerful from Haryana. Jai Hind. So जय हिंद. जय हिंद. चलो you can exit from this and then we'll end this. All the बच्चों सभी you can exit now. So जितेन जी आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं.
So anyone from school team if is present here? ठीक है, जितेन जी बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए. ऐसे वर्षों के बाद भी हमने 20 वर्षों को आप ये सब चीज को सोच के बताया, ऐसे ही आपको क्यों लगता है? आप इनसे अच्छे होता है। हाँ स्वप्निल जी, हाँ सर। फर्स्ट डे नहीं हूँ, आज भी हूँ। हमारी टीम में वो बहुत सारी बहुत बड़े
Yes, yes. एकदम completely आप रोज आएंगे, आप गहरा सोचेंगे ना हम आपके साथ। आप participate की- डेली बेसिस पे कभी कोई तो एक आप बोलना चाहिए कि तुम करके पाओगे। सभी चीजें कहा कि ये काम करना है तो सभी चीजें करें। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर हर एक काम कर सकते हैं। आपके बच्चे हैं ना, you want to say